Okay. But we not completed the conditions where Hardy-Weinberg principle will not work. That thing we not completed in last session. So today we will going to discuss some of the revision of Hardy-Weinberg principle, and after that we will going to discuss about the different conditions. Okay. After that we're going to discuss biological scale, time scale, or time frame we can say, and there have different eras, epoch and the period. That thing we will going to discuss. That means biological scale, time scale. Okay. So this thing we will going to discuss in today's session, and we're going to discuss about the natural selection, how natural selection work, or how naturally selected the things. Okay. So that thing we will going to discuss. So before going to start the session, जो हमारा रोज का पैटर्न लाइक टेक्निकल चेक, प्लीज आंसर मी इन द पोल गाइस, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस. Okay. Okay. So everything is clear from my side, because a lot of people saying I am audible clearly and blackboard visible clearly. Lot of innocent 100% people. Okay, so let's start with some questions, and question is on your screen. The first question is, which of following represent order of horse? Okay, that is Perissodactyla, Clyla, Cabalus, Therus, Equidi. Okay, Perissodactyla. Okay, that the pronunciation. Okay, and actually, why this question asked here? Because in the last session, I think in previous session, in some previous session, you we discuss about the evolution of horse, and that's why this question asked here. Okay, यहाँ पर 2017 में ये क्वेश्चन आया था, and इसके वजह से I am include this question. So if you don't know about the order of horse, ठीक है, no worry about it. ठीक है, मैं इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन को डाला है. ठीक है, so फिर भी if you know about it, then answer it. नहीं है तो मैं बता देता हूँ. करेक्ट मंजीरी. Okay. So only 10 seconds are left, guys. With answer passed, Indus is correct, Vidya correct, Pompai correct, Manjiri correct. Only 10 seconds. Okay, so I am ending this poll, and this is your result here. Maximum people choose an option A. Obviously, option A is the correct option. Okay, option A यहाँ पर correct है. And there have a lot of chances to ask this type of question. Why it is asked in the evolution? Because you already learn about the evolution of horse, and that's why this question we can say ask here. Okay, so whenever we talk about the order of horse, okay, then order of horse is the order क्या हो गया?
order of horse, then it is the Perissodactyla. ठीक है, Perissodactyla. Okay, and the family is the Equidae. Okay, family is a Equidae or Equida, whatever you say, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता हो इसका, ठीक है, Equidae. Next genus is the Equus. ठीक है, so I am right genus here. Okay. And here the species. So species of horse, it is known as the Ferus. Okay. Ferus. Okay. And genus is a Ictus. Okay. And subspecies is the Caballus. Okay. So this is the classification of horse. ठीक है, ये horse का जो है वो classification हमें देखने को मिलता है. ठीक है, चलिए coming to the next. Next question is the actually is the logical question and general question. ठीक है, so everyone want to answer it. The first organism were chemoautotrophs, chemoheterotrophs, autotrophs, eukaryotes. Okay, so I am launching poll again. Please answer fast. थोड़ा सा logical है, so you want to use your brain to solve this question. ठीक है, but you know about what is chemoautotroph, what is chemoheterotroph, what is autotroph. ये सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है यहाँ. चलिए, वैभव इनकरेक्ट. इसमें मुझे पता है बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा. मंजिरी करेक्ट, इंद्रशीष इनकरेक्ट, पॉम्पी करेक्ट, विद्या करेक्ट. ठीक है, सो आई एम एंडिंग द क्वेश्चन नाउ. And here, maximum people choose an option A. Obviously, option A is the wrong option. Okay. So correct option is the chemoheterotrophs. Okay. Why chemoheterotrophs is a correct option here? So we just want to know about the chemoautotroph, chemoheterotroph, autotroph, and eukaryote. So these two option is obviously not, that is autotroph and eukaryote, because autotroph is a general option for all autotrophic organism, either it photoautotrophs or chemoautotrophs. ठीक है, तो ये उसके लिए हो गया. Obvious eukaryote is a not answer, because first microorganisms who generate on the earth, that is the prokaryote. ठीक है, so this is a basic thing. Next thing is the chemoautotrophs. Then what is the mean by chemoautotrophs? So chemoautotrophs are those organisms who generate or who develop the organic molecule. ठीक है, so organisms that are capable to synthesize organic molecules. So I am right here.
organism capable to synthesize ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? ठीक है, लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया आर द कीमोएटोट्रॉफ्स। ओके, then what is meant by chemoheterotrophs? So chemoheterotrophs are the organism which use the chemical from outside। ठीक है, जो क्या करते हैं, केमिकल को आउटसाइड से यूज करते हैं। सो आई एम राइट हियर, यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। organism which utilize chemical from outside। okay, that organism is known as the chemoheterotrophs। उसे हम कहते हैं chemoheterotrophs। okay, and they develop energy from that specific chemical। ठीक है, so ये एक मतलब डेफिनेशन है chemoheterotrophs का। why chemoheterotrophs at that time? Because during primitive stage of earth, at that time lot of chemicals are present on the earth। okay, that's why some organism are developed। okay, and they we can say utilize that chemical things। okay, and develop the energy। और वो क्या करने लगे, एनर्जी को डेवलप करने लगे। हियर इन केस ऑफ कीमोएटोट्रॉप्स के केस में क्या होगा, दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं। Then autotrophs are the organism or category of organism where we discuss about chemoautotrophs and photoautotrophs। ठीक है, उसमें दोनों भी कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई वो तो ऑप्शन नहीं ही रहेंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, दैट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ कीमोहेटेरोट्रॉफ्स। ऐसा ही कर रहे हो मिची? ठीक है, ओके ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल स्टिल मेरे माइंड में नहीं है, हम लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ माइकोप्लाज्म हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कीमोहेटेरोट्रॉफ के बारे में लास्ट में। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट थिंग इज द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल? वी ऑलरेडी डिस्कस। Hardy-Weinberg principle is important for where natural we can say selection not happen। ठीक है, ऐसे जो कम्युनिटीज है, ठीक है, उसको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। why we can say natural selection not happen here? ठीक है, because Hardy-Weinberg when discuss this type of principle, at that time he discuss about some factors that is a disturbing factor। okay, and that disturbing factor is important for the evolution or for the natural selection। disturbing factor जो रहते हैं वो किसके लिए जरूरी होगा, evolution या natural selection के लिए। and that's why when disturbing factor of sense, okay, at that time Hardy-Weinberg principle is applied। okay, and if disturbing principle is present, at that time Hardy-Weinberg principle cannot apply। then Hardy-Weinberg ने हमें क्या बताया, what Hardy-Weinberg says? so he said about the population alleles। okay, and that alleles are the remain constant। ठीक है, मतलब जनरेशन में पॉपुलेशन के अंदर जो है अलील कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, एंड ही गिव द वन ऑफ इक्वेशन फॉर इट। ओके, द इक्वेशन लाइक a plus b square। ठीक है, a plus b square जैसा इक्वेशन हमें उसने दिया है।
that is p plus q square. Okay, and this equation whenever we apply, the value of that specific population is under 1. ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा, 1 से नीचे ही आएगा हमेशा. सो यू कैन सी द डिफरेंट एग्जांपल फॉर दिस. ठीक है, यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल हमें देखने को उसके लिए मिलते हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है, इस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को हमने ऑलरेडी खत्म किया था, and we going to discuss factor affecting Hardy-Weinberg equilibrium. So which thing is affect to the Hardy-Weinberg equilibrium, and that thing, because question asked in examination and there have lot of options, वहां पर options रहेंगे, and there have one option from this list जहां पर आपको पूछा जाएगा is any factor from following is affect Hardy-Weinberg principle or equilibrium. ठीक है, एंड उसमें जीन म्यूटेशन हो सकता है, जीन माइग्रेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, देन व्हाट इज मीन बाय जीन माइग्रेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, so here you can see we already discussed, there have some sparrow here, that is a blue sparrow. Here you can see the red sparrow. Okay, and this blue sparrow go toward the red. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो चला जाता है. That means here new gene is introduced in this group. नया जीन जो है वो इस ग्रुप के अंदर क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया. And at that time the Hardy-Weinberg principle is not applicable. इस समय Hardy-Weinberg principle यहाँ पर applicable नहीं होता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखते हैं इसका, that is a genetic drift. Okay, so in case of genetic drift there have two things we discussed, that is a founder effect and one is the genetic drift. ठीक है, then what is mean by genetic drift? So genetic drift is the drastic change in allele frequency. Okay, drastic change in allele frequency when population size become a very small. ठीक है, मतलब अचानक से चेंज आना किसके फ्रीक्वेंसी में, अलील के फ्रीक्वेंसी में. सो आई एम राइट हियर, drastic change in allele frequency. ठीक है, रत्ना, is any question? Please ask in chat box. ठीक है, so here you can see the drastic change in allele frequency. Then what is meant by drastic change, or we can say there have some sudden change in the genetic system. जेनेटिक सिस्टम के अंदर सडन चेंज, और वो क्यों आ सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी वन ऑफ पिक्चर हियर. ओके, in this picture you can see there have some of group of insects. Okay, यहाँ पर कुछ group of insect को हम देख रहे हैं, and this group of insect is affected by the foot of man. और ये क्या हो रहा है, वो affect हो रहा है foot of man से. That means the lot of insects are get die from this group of insect. मतलब इस group of insects से क्या होता है, बहुत सारा लिविंग जो रहेंगे इंसेक्ट्स रहेंगे वो गायब हो जाएंगे. ठीक है, and that is the drastic change in the allele frequency. Drastic in the sense a change happen in a very lesser time period. That thing is the drastic change in the allele frequency. And if allele frequency is a change, then it is the disturbance for Hardy-Weinberg principle. और allele frequency अगर चेंज हो जाता है तो वो क्या रहेगा, Hardy-Weinberg principle के लिए क्या रहेगा, एक डिस्टर्बेंस रहेगा. एंड दैट थिंग इज नोन एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. इसे ही हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट इन द सेंस देयर हैव अनबैलेंस इन द जेनेटिक सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर कुछ अनबैलेंस हो गया. ठीक है, इजीली होगा, फास्ट हो गया, एंड दैट थिंग इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. इसे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट. इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एनी वी कैन से, जब पहले के जमाने का जब सिस्टम था, at that time whenever some we can say some king or some inventor, ठीक है, invade the any land. ठीक है, at that time वहां के जो लोग थे वो भाग जाते थे from specific land, और वो दूसरे लैंड पर जाके बैठ जाते थे. ठीक है, या बस जाते थे. समझ में आ रहा है? So here is the drastic change in the population. तो population में क्या हो गया, drastic change हो गया.
दैट मीन्स उतना जो अलील है, ठीक है, दैट गेट लॉस फ्रॉम पर्टिकुलर लैंड, ठीक है, मतलब वो लॉस हो गए पर्टिकुलर लैंड से, ठीक है, एंड दैट थिंग इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी, ओके, लाइक इन्वेंशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का इन्वेंशन होना, ठीक है, दैट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल बिहाइंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट थिंग इज द फाउंडर इफेक्ट, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, फाउंडर इफेक्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल देयर हैव सम ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, एंड दे गो विथ सम शीप, ठीक है, ये शीप है उनका, एंड उस शिप से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ठीक है, देयर हैव सम इंसेक्ट, बट सम ऑफ इंसेक्ट आर गोइंग टू स्विम, ठीक है, ये जो इंसेक्ट है वो कुछ स्विम करने के लिए चला गया, ठीक है, समुद्र के अंदर, एंड दे गॉट टू वन ऑफ आइलैंड, ठीक है, एंड उस आइलैंड के ऊपर ये जाके बैठ जाते हैं या बस जाते हैं, ठीक है, ओके, एंड ये यहाँ पर बस गए हैं, एंड दे आर दी न्यू फॉर दिस आइलैंड, ठीक है, इस आइलैंड के लिए ये पूरी तरीके से नए, एंड दैट्स व्हाई ही is the founder of that specific species on that island, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गए? Is my voice clear to all guys? Please mention in comment or it cut it. Am I audible clearly? Okay, ठीक है, is video is clear? Okay, I think Ratna you have some issue from your side, ठीक है, ओके ओके ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव पॉजिटिव आंसर, दैट्स व्हाई, ठीक है, आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है, चलिए, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है इस केस में, दिस न्यू इंसेक्ट्स आर द फाउंडर ऑफ देयर स्पीसीज, ये क्या हो गए यहाँ पर, इस स्पीसीज का ये फाउंडर हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फाउंडर इफेक्ट, इसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू सी द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ इसके लिए, फाउंडर इफेक्ट के लिए, सो यू कैन सी लॉट ऑफ वी कैन से ब्राइट कलर पीपल situated in the north, okay, and dark skin tone color people situated in the south in India, okay, so why it happened, ये क्यों हुआ होगा, and whenever you see the people of J&K, that is जम्मू कश्मीर के लोग अगर आप देखोगे, they have a we can say Indo-Iranian we can say उसे क्या कहते हैं, उनका जो इशिनिटी है, ठीक है, दैट इज वंश, वंश जिसे कहते हैं, दैट इज इंडो इरानियन, देन व्हाट इज मीन बाय इंडो इरानियन हियर, ठीक है, सो दे पीपल केम फ्रॉम द अरेबियन साइड और अरेबिक कंट्री, ओके, एंड दे सिचुएटेड इन द इंडिया इन J&K उस एरिया के अंदर, एंड दैट्स व्हाई देयर स्किन टोन इज अ ब्राइट, बिकॉज इरानियन लोगों का स्किन टोन जो है वो ब्राइट है, ओके, and whenever they came in India, ठीक है, they are the founders, वो किसके फाउंडर हो गए, इरानियन इशिनिटी के, ठीक है, मतलब इरानियन इशिनिटी जो आने का जो सिस्टम है वो किनके ओर से आया है, उनके ओर से आया है, ठीक है, सो दैट इज अ जियोग्राफी, ठीक है, मतलब ऐसी चीजें हुए इन हिस्ट्री, like whenever you see the people which situated in India, like Leh, Ladakh, ये जो ऊपर वाला एरिया है, और यू कैन सी द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया, ठीक है, दे हैव अ इंडो मंगोलियन इशिनिटी, ठीक है, उनका इंडो मंगोलियन इशिनिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये कैसे हैपन, ये चीजें कैसे हुई होगी, ठीक है, तो जो इशिनिटी है, ठीक है, लॉट ऑफ ईयर बिफोर दिस हैपन, लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये चीज हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जो बॉर्डर साइड रीजन है, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, देन पीपल जो है वो वहां से यहाँ पर आए हैं इंडिया के अंदर, ओके, एंड दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक सिस्टम देन जो पीपल्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो यहाँ पर रहते थे उनसे थोड़ा सा अलग था, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी द सम चेंजेस इन इट,
ठीक है, और इसके वजह से हम अभी भी आज भी उनके अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो लॉट ऑफ फैक्टर जो है, वैसे एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट ऑन दिस केस, बट इशिनिटी फैक्टर जो रहता है दैट इज वंश, जिसे हम वंश कहते हैं, मतलब वो कौन से वंश के हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो वो पीपल जो है ना, जो बॉर्डर साइड रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो ऑब्वियस चीज है, इंटर रिलेशन चलता ही है, ऐसा कुछ ये नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो इस तरीके का रिलेशनशिप जो है बनता है यहाँ पर, एंड दिस इज अ गुड थिंग ऑल्सो। अब ये गुड थिंग क्यों है, क्योंकि जितना ज्यादा इश्यूनिटी मिक्सअप होगा, ठीक है, उतना ज्यादा टैलेंट बढ़ता है। ये बात ध्यान में रखना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज जेनेटिक वेरिएशंस जो है, ठीक है, इट गेट अ मैक्सिमम, वहां पर जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ जाता है, एंड दैट्स व्हाई देयर हैव स्पेसिफिसिटी ऑफ जीन जो रहेगा, ठीक है, वो वहां पर जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग स्पेसिफिक जीन रहेगा, एंड दैट्स व्हाई देयर हैव सम ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड, उसका एक स्पेसिफिक ट्रेड भी रहता है उस जीत का। जैसे फॉर एग्जांपल whenever we talk about the people from the mountains, ठीक है, हम जब माउंटेन के लोगों की बात करते हैं, जो ज्यादातर माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में रहते हैं, दे हैव अ टॉलरेट लो ऑक्सीजन, ठीक है, वो लो ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं। व्हाई इट हैपन, क्यों क्यों ऐसा है, बिकॉज उनका जो जन्म है और उनका बर्थ है वो ही जो है वो पहाड़ी में हुआ है। दैट्स व्हाई द कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज अ मैक्सिमम, उनका कैपेसिटी ऑफ लंग्स ज्यादा है। समझ में आ रहा है नहीं, एज कंपेयर टू अ पीपल हु लिव इन अ, वी कैन से जो ग्राउंड एरिया में रहते हैं उनसे ज्यादा। ओके, एंड दैट इज अ गुड थिंग, मतलब एक कंट्री के लिए इतना डाइवर्सिटी होना बहुत अच्छा चीज रहता है, बिकॉज लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल उसमें से निकल सकते हैं, लॉट ऑफ फिजिकली फिट पीपल ऑल्सो उसमें से निकल सकते हैं, और एक ही जैसा पीपल रहा तो क्या होगा, कैरेक्टर इज सेम, कैरेक्टर सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और इसी वजह से इंडिया का जो एक वॉरियर जो हम इशिनिटी देखेंगे ना, वो बॉर्डर साइड में हमें मिलता है, जो फाइट करने वाला रहता है। ठीक है, जनरली जो फाइट करने वाला लोग है, जैसे पंजाबी जाट, दैट पीपल, मतलब वो फाइटिंग स्पिरिट वाला पीपल है पहले से, बिकॉज वही चीज है, अगर इफ यू गोइंग टूवर्ड द हिस्ट्री एट दैट टाइम, वहां से ज्यादा जो है इन्वेंशन हुआ है इंडिया के अंदर, दैट्स व्हाई। समझ में आ रहा है। तो फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, समवन न्यू ऑर्गेनिज्म गोइंग टू न्यू लैंड, ओके, एट दैट टाइम दिस ऑर्गेनिज्म इज द फाउंडर फॉर दैट स्पेसिफिक स्पीसीज, एंड दिस थिंग इज अ प्रॉब्लमैटिक फॉर द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, और ये चीज क्या रहेंगी, प्रॉब्लमैटिक रहेंगी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, okay, I am not a JNVian, but I am work in a JNV, that's why. ठीक है, बिकॉज अवंती फेलो वर्क इन जेएनवी, दैट्स व्हाई। ठीक है, मैं जेएनवी में काम करता हूँ, जेएनवी पालघर महाराष्ट्र में। ओके, ठीक है, चलिए। कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट थिंग इज द म्यूटेशन। सो व्हाट इज बाय म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। सो whenever any genetic pattern change suddenly by any outer source, for example some radiation, okay, or some chemical, ठीक है, and that thing is known as the mutation. Actually mutation have a two types in the sense, whenever we categorize there are a lot of category of mutation, but mutation को हम type के अंदर divide करें, there have two, that is a positive mutation, the next is a negative mutation. Then what is meant by positive? So positive is the, if positive change happen and that change is a help to evolution, जो चेंज इवोल्यूशन के लिए काम में आएगा, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव म्यूटेशन, उसे हम पॉजिटिव म्यूटेशन कह सकते हैं। एंड व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव म्यूटेशन, देन नेगेटिव म्यूटेशन इज द थिंग व्हिच इज अ डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल व्हेन बीटा रेडिएशन वी कैन से अफेक्ट द जीन, ठीक है, जब बीटा रेडिएशन जो है वो जीन को जब अफेक्ट करेगा, एट दैट टाइम इट कॉज द कैंसर, वो क्या करता है, कैंसर को कॉज करेगा, एंड दैट थिंग इज नोन एज नेगेटिव म्यूटेशन। सो इन दिस सेक्शन दिस म्यूटेशन इज अ पॉजिटिव म्यूटेशन, मतलब हम नेचुरल सिलेक्शन के सेक्शन में पॉजिटिव म्यूटेशन के बारे में बातें करते हैं।
ठीक है, अदर थिंग्स के बारे में नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो म्यूटेशन ऑल्सो वन ऑफ फैक्टर, दैट थिंग इज अ we can say disturbance factor for a Hardy-Weinberg principle. Next is the genetic recombination. Then what is meant by genetic recombination? So whenever you can see the chromosome here, ठीक है, हमने already discuss किया है genetic recombination को, and here this chromosome lost their ability and give to another chromosome. ये खुद का loss ability करता है, इसको दे देता है, and this red chromosome also lost their ability and give to blue chromosome. So interchange the genetic pattern. यहाँ पर क्या हो रहा है, genetic pattern जो है वो interchange हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दैट थिंग इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आल्सो चेंज द जेनेटिक पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर भी जेनेटिक पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द डिस्टर्बेंस फैक्टर फॉर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। मतलब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का एक सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, दैट मींस देयर हैव नो एनी चेंज इन जीनोम। ओके, एंड दैट्स व्हाई वहां पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को हम अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द थ्री टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यू कैन सी द नेचुरल सिलेक्शन हियर। फर्स्ट इज द स्टेबलाइजिंग, नेक्स्ट इज द डायरेक्शनल, एंड लास्ट इज द डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय स्टेबलाइजिंग? So here is the one example. मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इन वन सोसाइटी देयर हैव सम टॉल पीपल एंड देयर हैव सम शॉर्ट पीपल। ठीक है, एक सोसाइटी है, ठीक है, देयर हैव वन कम्युनिटी जहां पर सारे के सारे टॉल पीपल है, कहीं पर सारे के सारे शॉर्ट पीपल है, बट देयर हैव वन अगेन वी कैन से कम्युनिटी देयर हैव बोथ पीपल आर प्रेजेंट, जहां पर दोनों भी तरीके के पीपल प्रेजेंट रहेंगे, इट शॉर्ट एंड टॉल, दोनों भी तरीके के। दैट थिंग ऑफ सिलेक्शन इज नोन एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इस चीज को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन? वेयर द बोथ कैरेक्टर कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, जहां पर दोनों भी कैरेक्टर है ऐसे ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, दैट इज Darwin finches. So Darwin finches are the example for stabilizing selection. क्यों? Because वहां पर देख रहे हैं at a time there have lot of different type of big containing finches are present. ठीक है, मतलब वहां पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे big containing finches है, and that thing is known as the stabilizing selection. यहाँ पर वो क्या रहेगा, stabilizing selection रहेगा। ठीक है, वन मिनट। ओके ओके, ठीक है, नहीं नहीं वो स्टेबलाइजिंग नहीं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो रहेगा हमारा, वन मिनट, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में दोनों टाइप का रहेगा। ठीक है, स्टेबलाइजिंग में जो है वो इंटरमीडिएट टाइप का रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था ना, जो मैंने बोला वो थोड़ा गलत बोला है पहले। ठीक है, मैं बताता हूँ फिर से। सो हियर यू कैन सी, हियर इज द टॉल पीपल एंड हियर इज द शॉर्ट पीपल, but whenever we see the stabilizing selection, at that time there have mean level people, or we can say intermediate। ठीक है, यहाँ पर कौन रहेंगे, इंटरमीडिएट रहेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब a people which not too small, which not too tall। ठीक है, मतलब जो टॉल भी नहीं स्मॉल भी नहीं, ऐसे लोग जो रहेंगे वो रहेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर। और this type of species get selected which have a mean character, मतलब जिनके मीन कैरेक्टर है वही लोग जो है या वही ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग अगर देखते हैं, दैट इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। देन व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शनल सिलेक्शन? सो अगेन देयर हैव, वही हमारा एग्जांपल, दैट इज अ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस वाला। ठीक है, so in case of directional selection either tall gets selected or short gets selected, मतलब दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट किया जाएगा।
ठीक है, सो आई एम राइट हियर either tall select by nature, ठीक है, और शॉर्ट, ठीक है, सिलेक्ट बाय नेचर मतलब कोई भी एक जो है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, आइदर टॉल किया जाएगा और शॉर्ट किया जाएगा, ठीक है, दैट नोन एज द डायरेक्शनल सिलेक्शन। व्हाई इट कॉल्ड डायरेक्शनल? बिकॉज ये ग्राफ है ना, थोड़ा ये यहाँ पर गलत है, ग्राफ ये ऐसा होना चाहिए डायरेक्शनल का, आइदर दिस और दिस, इस तरीके से, ये इस तरीके से ग्राफ रहता है, और दिस, ठीक है, मतलब यहाँ पर टॉल रहेगा और यहाँ पर सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया हमारा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, यहाँ पर टॉल रहेगा और यहाँ पर शॉर्ट रहेगा, ठीक है, सो दैट थिंग इज नोन एज द डायरेक्शनल सिलेक्शन, उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, next thing is the we can say disruptive selection. Then what is the mean by disruptive selection? तो disruptive selection में क्या होता है, both patterns are selected, ठीक है, यहाँ पर दोनों भी पैटर्न क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, जो मैंने पहले बोला था, that is a tall and short both get selected, ठीक है, so I am right here, tall and short people selected, ठीक है, ये दोनों भी जो टाइप है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस और नेचुरल थिंग्स, मतलब नेचुरल चीजें कैसे सिलेक्ट की जाती है, और व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन देयर हैव थ्री टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फर्स्ट इज द स्टेबलाइजिंग, नेक्स्ट इज द डायरेक्शनल, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रप्टिव, ठीक है, डिस्ट्रप्टिव, स्टेबलाइजिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है, तो ऐसी तीन चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। इन केस ऑफ स्टेबलाइजिंग देयर हैव मीन कैरेक्टर कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म गेट सिलेक्टेड, वहां पर मीन कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए जाएंगे, यू कैन सी हियर अगेन, इस ग्राफ में हमें और ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, in next case you can see in case of directional either tall or short, or you can see either white color, we can say mice, or black color, कोई भी एक हो सकता है। in case of disruptive both type of organism get select, ठीक है, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, that thing is the natural selection, ठीक है, it is the type of natural selection. is there any doubt in it? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, 1 minute. ओके, चलिए, हैव यू एनी डाउट? ठीक है, चलिए, okay then guys, coming to the next is the question, and question is, in general in the developmental history of mammalian heart, it is observed that it passes through a two-chamber fish-like heart, three-chamber frog-like heart, and finally to four-chamber stage. To which hypothesis can this above cited statement be approximated? And hypotheses are, or we can say the name of scientists and principles are Hardy-Weinberg law, Lamarck principle, biogenetic law, Mendelian principle, ठीक है। So please first read question carefully. I am launching the poll. ठीक है, so I am launching poll now. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब। तो उसमें हम हार्ट का जो डेवलपमेंट है वो देखते हैं, तो इसमें से कौन सा रूल उसको प्रूफ करेगा प्रॉपरली, ठीक है। सो आई एम लॉन्चिंग पोल फॉर यू गाइस, प्लीज आंसर।
Correct, Manjiri. Vaibhav, incorrect. Okay. Pompey, incorrect. Sheetal, incorrect. ओके, सो आप लोगों ने मुझे कीमो हेट्रोट्रॉफ का एग्जांपल पूछा था. सो एग्जांपल इज आर्चिया. ठीक है, एक्सट्रेमोफाइल्स आर दी कीमो हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है, आर्चिया जो है ना, आर्ची बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, दे आर दी कीमो हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है, सम ऑफ एक्सट्रेमोफाइल्स लाइक ओके, लॉट ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया एक्सट्रेमोफाइल्स के अंदर. ठीक है, आर्चिया ग्रुप जो है वो ध्यान में रखना. ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस क्वेश्चन and this is your result. Here maximum people choose an option A. Obviously option A is a not a option. आंसर नहीं है ऑप्शन ए. क्यों नहीं है? अब सिंपल सा चीज है. अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, किसी को पता नहीं हो सकता जनरली. एक ऐसा हम सोचते हैं, ऐसे ऐसा हम एज्यूम करते हैं, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बुक आल्सो. ये चीज इतना डिटेल में हमारे बुक में भी नहीं दिया गया है. ठीक है, चलिए, बट बाकी की तीन चीजों को हमें पता है ना. भले इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता हो, बट यू ऑलरेडी नो अबाउट हार्डी-वेनबर्ग लॉ, you already know about Lamarck principle, you already know about Mendelian principle. ये तीन चीजें that thing include in our books, ये हमारे बुक में है. तो उसके हिसाब से अगर हम चले, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर. ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग लॉ. हार्डी-वेनबर्ग लॉ में क्या बताया? ठीक है, सो हार्डी-वेनबर्ग लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर द पॉपुलेशन अलील फ्रीक्वेंसी. ठीक है, यहाँ पर अलील फ्रीक्वेंसी को कैरेक्टराइज करेगा. हार्डी-वेनबर्ग लॉ इज अपोजिट टू नेचुरल सिलेक्शन, ये बात ध्यान में रखना. एंड हियर यू कैन सी द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. और क्वेश्चन किसका है? ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, और यू कैन से इट बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल इवोल्यूशन. और ये इवोल्यूशन के डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंटल इवोल्यूशन है उसके बेस पर क्वेश्चन. देन व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंटल हिस्ट्री और डेवलपमेंटल बायोलॉजी? So whenever we discuss about the development of embryo inside mother womb, okay, this thing is known as the developmental biology. उसे हम कहते हैं developmental biology. Then what is meant by developmental history? Again, developmental history is the history of evolution of embryos. मतलब embryo का जो evolution होता है, ठीक है, that thing is known as the developmental history और developmental evolution. एंड उसके लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कौन सी चीज पढ़ा था? एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, दैट थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस. एंड बायोजेनेटिक लॉ गिवन बाय द अर्न्स्ट हैकेल. अर्न्स्ट हैकेल
that scientist who gave the embryological evidence, जिसने हमें embryological evidence दिया, वही जो है उसने बायोजेनेटिक लॉ भी दिया है. Then what say the biogenetic law? Biogenetic law suggests the embryological parallelism. ठीक है, मतलब एम्ब्रियो जो रहते हैं, ठीक है, that are the same in a primitive generations or primitive stages. We cannot say the generation in this question, और इस केस में हम जनरेशन नहीं कह सकते, but in case of some stages embryo are the same, that is a parallel embryos. वहां पर क्या एम्ब्रियोस कैसे है, पैरेलल है, ठीक है, and that thing is the biogenetic law, और उसे ही हम कहते हैं biogenetic law. ठीक है, so that's why option C is the correct. बाकी के तो दूर दूर तक संबंध नहीं है और दूर दूर तक रिलेट नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हार्डी-वेनबर्ग लॉ, सो हार्डी-वेनबर्ग इज इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन. अलील फ्रीक्वेंसी का कुछ है क्या इसमें, नहीं, कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज अ लैमार्क प्रिंसिपल. सो लैमार्क प्रिंसिपल इज अ वी कैन से इंपॉर्टेंट फॉर, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो चीजें यूज करी जाती है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वही डेवलप हो जाती है. दैट थिंग इज अ अपोजिट टू मेंडलिज्म. जो मेंडलिज्म है उसके अपोजिट में किसने कहा है, लैमार्क ने कहा है. तो लैमार्क का भी ये एग्जांपल नहीं है. नेक्स्ट इज द मेंडेलियन प्रिंसिपल, सॉरी डार्विनिज्म. लैमार्किज्म इज अपोजिट टू डार्विनिज्म, नॉट मेंडलिज्म. अगर मैंने कहा होगा तो ठीक है, हो जाता है गड़बड़. सो लैमार्किज्म जो रहेगा वो अपोज करता है किसको, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस को. ठीक है, या नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अलग बताया लैमार्किज्म के अंदर, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. सो व्हाट इज अ मेंडेलियन प्रिंसिपल. सो मेंडल डिस्कस अबाउट सम ऑफ फैक्टर, ये तो हमें चीज पता ही है. ओके, दैट मींस उसने जेनेटिक्स के बारे में बताया, नॉट अबाउट एनी ऑर्गन ऑफ इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उसके बारे में मेंडेलियन ने नहीं बताया. सो दैट थ्री थिंग वी ऑलरेडी नो. ठीक है, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, वी ऑलरेडी नो. लैमार्किज्म वी ऑलरेडी नो. मेंडेलियन प्रिंसिपल वी ऑलरेडी नो. ठीक है, सो कौन सा चीज रह जाता है, दैट इज द बायोजेनेटिक लॉ. अगर हमें नहीं सूझता कुछ भी, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है हमें, दैट इज अ, अरे ये क्या हो रहा है, एम्ब्रियो पैरालेलिज्म. ठीक है, एम्ब्रियो पैरालेलिज्म जो है हमें बताता है बायोजेनेटिक लॉ. ठीक है, एंड गिवन बाय द अर्न्स्ट हैकल. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अर्न हैकल के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस. नेक्स्ट थिंग is the a brief account of evolution. Evolution कैसे हुआ, in this topic we will going to discuss timeline of evolution. यहाँ पर हम timeline देखेंगे evolution का. So you can see in this picture there have some scale, geological time scale. Then what is meant by geological time scale? Time scale is a we can say it is the denotion of time. ठीक है, जहां पर टाइम को डिनोट किया गया है, लाइक आवर कैलेंडर. कैलेंडर आल्सो वन ऑफ डिनोशन स्केल ऑफ टाइमलाइन. ये टाइमलाइन को गिनने का एक, ये हम बोलेंगे मेजर करने का एक, काउंट करने का एक साधन बोल सकते हैं आप लोग इसे. ठीक है, देन हियर यू कैन सी द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. देन व्हाट इज मीन बाय जियोलॉजिकल, यहाँ पर टाइम किस तरीके से गया है, ठीक है, पहले वाला, दैट थिंग इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. And this geological time scale majorly we can say separate in the 4 eras. यहाँ पर हमें 4 एरा देखते हैं, that is a Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. And eras have a different epoch. Epoch have a different period. तो इस तरीके का सिस्टम हमें देखने को मिलता है. ठीक है, in your syllabus you just know about the different type of टाइम स्केल. ओके, और वी कैन से जो हमारा एराज रहता है वो हमें पता होना चाहिए इन यूर सिलेबस.
and which organism is we can say evolve in specific eras. ये चीज हमें पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है. सो लेट्स गो टुवर्ड द फर्स्ट एरा, दैट इज अ प्रोटियोजोइक. प्रोटियोजोइक एरा जो है, ठीक है, MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर, ठीक है, मिलियन ईयर अगो, ठीक है. सो व्हाट हैपन इन अ प्रोटियोजोइक. प्रोटियोजोइक में क्या हुआ? सबसे पहले प्रोटियोजोइक के अंदर जो होता है दैट इज अ सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर, ठीक है, सेलुलर लाइफ अपीयर हियर, ठीक है. सेलुलर लाइफ जो है वो अपीयर हो जाती है. नेक्स्ट O2 जनरेटिंग सेल्स आर डेवलप. O2 जनरेटिंग सेल्स डेवलप और ऑर्गेनिज्म डेवलप, वॉट एवर यू से, ठीक है. Next is a photosynthesis process start, and that's why here O2 generating cells develop, ठीक है. Photosynthesis start, okay. Next यहाँ पर क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम अ मल्टी सेलुलर, ठीक है. सो सिंगल सेल का कन्वर्शन स्टार्ट हो जाता है इन अ मल्टी सेलुलर, इन अ मल्टी सेलुलर. Okay, guys. So what's happening in a Proterozoic era? Proterozoic era is the first era, we can say. And here you can see the cellular life get appear. O2 generating cells are developed. Photosynthesis happens. Due to photosynthesis, oxygen get evolved. Single cell organism, we can say, converted into multicellular. वो क्या किसमें convert होने लगे? Multicellular में, ठीक है. So यहाँ पर हमें 6 पीरियड जो है वो देखने को मिलते हैं. We already discussed एरा के अंदर रहेंगे पीरियड्स, एंड पीरियड्स हैव अ डिफरेंट 6 पीरियड्स, ठीक है. पीरियड कितने रहते हैं? 6 है अलग अलग, ठीक है. कौन कौन से पीरियड हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर? फर्स्ट पीरियड इज अ कैम्ब्रियन, ठीक है. नेक्स्ट पीरियड इज द ऑर्डोविशियन, ठीक है, ऑर्डोविशियन, ठीक है. You can see here Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, ठीक है. इस तरीके से ये पीरियड है. एंड यू कैन सी द ईयर्स हियर. यहाँ पर आपको साल दिखेंगे. जैसे ये जो है ना 542 मिलियन ईयर अगो, ठीक है. सो बिलियन ईयर अगो यहाँ तक रहेगा, ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द मिलियन ईयर अगो. ऑर्डोविशियन के बाद में साइलुरियन, थर्ड इज द साइलुरियन, ठीक है. फोर्थ जो है, ओके, दैट इज अ डेवोनियन, ठीक है. अरे यार क्यों हैंग हो रहा है अभी, ठीक है. फिफ्थ नंबर का जो है वो है कार्बोनिफेरस, ठीक है. कार्बोनिफेरस, ओके. एंड 6 नंबर का पीरियड है दैट इज अ पर्मियन, ठीक है. सो दिस इज अ डिफरेंट पीरियड जो हमें पैलेओजोइक एरा के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है. चलिए और आगे बढ़ते, और आगे जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है. जैसे दिस इज अ ट्राइलोबाइट्स, ठीक है. ट्राइलोबाइट्स जो है, दिस इज फॉसिल्स ऑफ ट्राइलोबाइट एक्चुअली. ये ट्राइलोबाइट जो है ये हमें फॉसिल्स के अंदर मिले हैं. एंड जो वर्टिब्रेट्स, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, दे गेट डेवलप 500 million year ago. So 500 million year ago, invertebrates are developed. ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जो है वो डेवलप हुए, ठीक है. आफ्टर दैट, उसके बाद जो है
450 million year ago first land organism, first land organisms are developed, ठीक है। और उसके बाद में 400 million year ago, ठीक है, arthropods are developed, okay, arthropods are developed, ठीक है। नेक्स्ट 350 million year ago jawless fish are developed, ठीक है। 350 million year ago jawless fish are developed. So you can see this is a jawless fish जिसको jaw नहीं है, ठीक है, they get developed. And this is a primitive plant that is known as the moss. Moss जो है यहाँ पर कौन है, primitive plant है. So यहाँ से हमें क्या पता रखना है, which organism are developed in which time, ठीक है, कौन से टाइम में कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है। अगेन इसके सामने अगर जाते हैं, यू कैन सी दिस इज अ लोब फिन फिश, ओके, and this lobe fin fish is a connecting link between amphibian and aquatic organism. ये aquatic और amphibian बीच का connecting link है, because you can see this is a early amphibian. early amphibian जो है, अब lobe fin fish जो रहता है, there have a strong fins. इनके ना fins जो है वो strong रहते हैं, okay, and they will develop into the forelimb of अर्ली एम्फीबियन, और वो आगे चल के एम्फीबियन के फोरलिम में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, दैट इज अ फिश ऑफ कोएलेकैंथ। कोएलेकैंथ नाम का एक फिश है यहाँ पर, ठीक है, एंड इट इज द लोब फिन फिश, मतलब ये लोब फिन फिश था, एंड ऐसा माना जाता था इट गेट डिसअपियर, ठीक है। एक्चुअली दिस इज अ 325 million year old लोब फिन कोएलेकैंथ, ठीक है, बट यहाँ पर एक फिश मिल जाता है इन 1938 में इन अफ्रीका, ठीक है। तो ये वैनिश नहीं है स्टिल हमारे अर्थ से, ठीक है। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर देखिए पैलोजोइक एरा जो है उसके अंदर, सॉरी कहाँ पे चला गया, ओके ठीक है, चलिए हाँ, 320 million year ago seaweeds and plants get develop, ठीक है, वो जो है वो डेवलप हुए। एम्फीबियन आर इवॉल्व टू रेप्टाइल इन दिस पैलियोजोइक एरा, ठीक है। थिक शेल एग जो है वो हमें रेप्टाइल के अंदर देखने को मिलता है। giant fern get developed and this giant fern we can say convert into the coal, और ये आज का जो कोल हमें मिलता है दैट इज अ जियांट फर्न, वो क्या होंगे, जियांट फर्न होंगे वो समय, ठीक है। इन नेक्स्ट केस, नेक्स्ट एरा दैट इज द मेसोजोइक एरा। इन मेसोजोइक एरा इट इज नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एज ऑफ रेप्टाइल्स हम इसे कहते हैं। There are three periods in Mesozoic era. First is a Triassic, next is a Jurassic, next is a Cretaceous. ठीक है। Then what's happened in a Triassic? In case of Triassic, dinosaurs get evolved. Triassic के अंदर क्या हुए? Dinosaur evolve हुए. In case of Jurassic, we can say amount of dinosaur is increases. और Jurassic के अंदर उनका अमाउंट जो है वहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। Next, 200 million year ago, some reptile go back to water, okay, and they develop into fish-like a reptile, and that fish-like a reptile is known as the Ichthyosaurus. और ये जो Ichthyosaurus है, that is a one of we can say water living organism, but ये किससे आया है, डायनासोर से आया है। अब यहाँ पर देखिए, इफ यू वॉच द मूवी दैट इज वी कैन से जुरासिक पार्क सेकंड पार्ट वगैरह अगर देखा होगा, देयर हैव वन ऑफ लार्ज एक्वेटिक डायनासोर, और वी कैन से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उसमें दिखाया जाता है, दैट इज इथायोसॉरस। इथायोसॉरस जैसा वो रहेगा, ठीक है। दैट इज वी कैन से प्रोजेनी ऑफ डायनासोर्स, जो डायनासोर का ही प्रोजेनी है, बट दे गोइंग टुवर्ड द
वाटर, ठीक है, वो पानी के अंदर रहना चालू कर दिए यहाँ पर। नेक्स्ट रैम लैंड रेप्टाइल दैट इज अ डायनासोरस, ठीक है, और डायनासोरस के अंदर जो है टायरानोसोरस रेक्स, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वी कैन से डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म था उस समय का, ठीक है, मतलब ये सबको डोमिनेट करता था। नेक्स्ट टूथेड बर्ड वेयर इवॉल्व, ठीक है, टूथेड बर्ड इन द सेंस जिनको दांत रहते थे ऐसे बर्ड इवॉल्व होते थे। जनरली बर्ड डू नॉट हैव अ टूथ और टीथ, ठीक है, बट उस समय में इस बिकॉज बर्ड का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है, दैट्स व्हाई टूथेड बर्ड्स वेयर इवॉल्व, और वो इवॉल्व होना यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट एग्जांपल, ये डायनासोर के अलग अलग एग्जांपल है, ठीक है, दैट इज अ ट्राइसेराप्टस रैटोप्स, नेक्स्ट इज अ ब्रैचियोसॉरस, नेक्स्ट इज अ स्टेगोसॉरस, एंड दिस इज अ टी-रेक्स, इसे टी-रेक्स कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक, ठीक है, बाकी शाकाहारी थे, शाकाहारी मतलब पत्ते खाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट सो Koinozoic era. So Koinozoic era is 66 million year ago to zero. मतलब आज तक का जो एरा है वो Koinozoic. That is age of mammals. इसे हम कहते हैं age of mammal, age of angiosperm, and there have two period in a Koinozoic era. That is tertiary period and quaternary period. And quaternary period also known as the age of man. So please remember all these things. ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. Quaternary, tertiary, ठीक है, because क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द एज ऑफ मैन, एंड ऑप्शंस रहेगा टर्शरी, प्राइमरी, क्वार्टरनरी, लाइक दैट, इस तरीके से। नेक्स्ट थिंग is in the 65 million year ago dinosaur suddenly disappear, ठीक है, there have two things इसके पीछे बताई जाती है, that is some climatic change happen, that's why dinosaur get disappear, and one thing some scientists suggest that is all the dinosaur converted into bird, सारे डायनासोर किस में कन्वर्ट हो गए, इवॉल्व हो गए बर्ड के अंदर, बट दैट इज नॉट अ ट्रू थिंग, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी पूरे के पूरे नहीं हो सकते कन्वर्ट। and development of mammal get started 65 million year ago, mammal का development start हो गया था, and there have some small mammals like a shrew, you can see the shrew in this picture, यहाँ पर shrew देख सकते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पर start हो गया था छोटे छोटे mammals का development। Next, so you can see the continental drift, okay, so what is mean by continental drift, where some continent we can say attached to other continent, मतलब some continent जहां पर आप देख सकते हो, here you can see the North America, South America, and again our earth is not look like जो हमें आज दिखता है वैसा अर्थ हमारा नहीं था, you can see this is a primitive earth, इस पिक्चर में जो मैं दिखा रहा हूँ ना ये primitive earth है हमारा, and this complete land is known as the Pangea, इसे हम कहते थे Pangea, and after some year यहाँ पर you can see the genetic drift get happen, यहाँ पर genetic drift होते गया, you can see the ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अलग जो है वो हो गया पूरा का पूरा, here North America, Eurasia, South America, Africa and Australia get developed, and here you can see the one of land that is the Gondwana land, and this Gondwana land is nothing but Indian subcontinent, गोंडवाना लैंड आगे चल के क्या बनता है, सब कॉन्टिनेंट बनता है इंडिया का, एंड दिस इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एंड इट हैपन ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है ना हमारे अर्थ के अंदर, इसके वजह से ये चीजें होती है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, और उसी वजह से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है, लाइक द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इज वन ऑफ एग्जांपल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल को कोई भी कंपटीशन नहीं था, इसके वजह से वो प्रिजर्व रहे और वी कैन से वो जनरेट हो सके वहां पर, उसका एक अलग स्टोरी है, कभी बताऊंगा मैं आराम से, या कोई एक लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो लिंक, यू कैन सी ऑन यूट्यूब, उसको देख लेना आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के वजह से व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन टू नॉर्थ अमेरिका, दिस एनिमल वेयर ओवर रिडन बाय द नॉर्थ अमेरिका फोन, मतलब यहाँ पर होता क्या है कि जब साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका अटैच हो जाता है, सॉरी साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका अटैच हो जाता है,
उस समय जो डोमिनेंट स्पीसीज रहेंगी वो वहां पर इवॉल्व होगी, रिसेसिव और वी कैन से जो सुपेरियर स्पीसीज है वो इवॉल्व होगी। समझ में आ रहा है क्यों? और इसी वजह से यहाँ पर एक वर्ड है ओवर रीडर बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना। नॉर्थ अमेरिकन फोना से वहां का जो स्पीसीज है साउथ अमेरिका का वो ओवर रीडर हुआ। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट दिस इज द स्केल टाइमलाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ठीक है, और ये वाला भी स्लाइड। ठीक है, इसमें मैंने पूरा कैटेगराइज करके रखा है सारी चीजों को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर ब्रायोफाइट्स, सो फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज लैंड। ठीक है, जो ब्रायोफाइट है वो पहला प्लांट है जो लैंड के ऊपर पैदा हुआ। इन पैलेयोजोइक इरा नंबर ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट आर फाउंड। ठीक है, पैलेयोजोइक इरा में बहुत सारे जो है हमें फॉसिल्स मिलते हैं प्लांट के। ठीक है, इन मिडल पैलेयोजोइक इरा, जो हमारा पैलेयोजोइक इरा है मिडल पैलेयोजोइक इरा, उसमें अल्गी का डेवलपमेंट हुआ है, ध्यान में रखना। लेट पैलेयोजोइक एरा के अंदर फंस का डेवलपमेंट हुआ है। ऑल द अल्गी डेवलप इन द कैम्ब्रियन पीरियड, मतलब आज जो हमें जितना भी अल्गी दिखता है वो पूरा का पूरा कहां पर डेवलप हुआ है? कैम्ब्रियन तक हो गया था। फर्स्ट लैंड प्लांट जो है वो ऑर्डोविशियन पीरियड में हमें मिले। लैंड प्लांट का मतलब होता है हायर प्लांट जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साइलेरियन पीरियड के अंदर हमें स्पोर बियरिंग प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यू कैन सी इवोल्यूशन ऑफ एनिमल। ऑर्डोविशियन में किसका इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पर? ठीक है, यू कैन सी द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, ओरिजिन ऑफ फिश। ठीक है, 500 मिलियन ईयर। डेविनियन पीरियड क्या रहेगा? दैट इज मैक्सिमम फिशेस। ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या रहेगा? एज ऑफ एम्फीबियन। कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन क्या रहेगा? रेप्टाइल का डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायसिक पीरियड जो है वो मैमल्स। ठीक है, उनका डेवलपमेंट। चलिए, यहाँ पर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, वैसे सिंपल चीजें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या? सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं पोल को लॉन्च करता हूँ। क्या क्या है? पैलेयोजोइक, आर्चियोजोइक, कोएनोजोइक, आर्चियोजोइक, पैलेयोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलेयोजोइक, मेसोजोइक, कोएनोजोइक, मेसोजोइक, आर्चियोजोइक, क्या है ये? प्रोटेरोजोइक। सो आई एम लॉन्चिंग पोल अगेन गाइस, प्लीज आंसर फास्ट। ओके, करेक्ट मंजीरी। 10 seconds are remain guys, please answer जल्दी जल्दी। Okay, so I am ending this poll and this is your result. Maximum people choose an option C, obviously C is the correct option। ठीक है, C करेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि जो अरेंजमेंट ऑफ टाइम लाइन है ना वो इस तरीके से की जाती है, जैसे प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन इज द अर्ली लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज अ पैलाइजोइक। ओके, उसके बाद में आएगा मेसोजोइक। ओके, एंड नेक्स्ट आता है दैट इज कोएनोजोइक।
ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, वी वांट टू नो अबाउट दिस, ठीक है, तभी हम इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। So if you have any type of doubt, you can ask, ठीक है, and this is for today only. There have little bit part is left, that is origin of evolution of man. We will complete it tomorrow and start the human physiology, ठीक है, कल से start कर देंगे, ठीक है। You can leave for a day if you not any doubt. चलिए,